السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارا فورتھ، سورہ آل عمران آیت 116 ٹو 120۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت 116۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کے اولاد ان کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گی، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پیچھے جو ہم لوگ مسلسل آیتیں ہم لوگ نے پڑھی، وہاں پر متقیوں کی صفات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا تھا، اور ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوگی، کیا ان کی خاص اچھائیاں ہوں گی۔ اور پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، تو پھر انہوں نے جو کفر کیا، تو کفر کرنے والوں کے اندر جو صفات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کے جو کام ہے، وہ جو چیزیں ان کے کام نہیں آنے والی ہیں، یعنی کہ دو چیزیں ان کے کام نہیں آنے والی ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو سب کچھ کرتا تھا، اللہ کے سارے احکامات فالو کرتا تھا، اور ان کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں سے دوسرے گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکاری ہیں۔ عام طور پر انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اللہ کے احکامات کے آگے سب لوگ انکار کر دیتے ہیں نا۔ تو چار کام کرنے کو پیچھے حکم دیا گیا، اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد ان کو کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو جو دو چیزیں ہیں نا، وہ انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کبھی قرآن پڑھنے کی راہ میں، کبھی سجدے کرنے کی راہ میں، کبھی نیکی کی طرف سبقت کرنے کی راہ میں، کبھی تبلیغ کرنے کی راہ میں۔ تو ان تمام نیکیوں کو روکنے والی دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ مال، اولاد، فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے یہ مال اور اولاد دراصل کیا ہے؟ یہ تو فتنہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ مال اور اولاد تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، جنہوں نے اگر کفر کیا اللہ کی آیات کے آگے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ چیزیں تم کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی نہیں یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ مال ایسا ہوتا ہے گھر میں الماریوں میں رکھا ہوتا ہے، لیکن انسان پھر جب بھی مصیبت آتی، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ مال کبھی کبھی کوئی کام نہیں آتا ہے، چاہے انسان کے پاس جتنی ہی لاکھوں لاکھ بھرے ہوں سیفوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان کو ایسی چیز جگہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے، یا اس کو سزا ہو جاتی ہے، تب بھی وہ مال جو ہوتا ہے ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے، وہ مال کچھ کام نہیں آتا اس کے، ہے نا۔ پھر اسی طرح سے اولاد ہے۔ اولاد جوانی میں جب جو ہے والدین ہوتے ہیں، بچے کی، چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جب بچہ خود بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے کام نہیں آتی، ماں باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے ان کو کنارے رکھ دیتے ہیں، کمرے میں اپنے گھر میں ایک کونا کمرہ دے دیا جاتا ہے، کوئی چیز میں انٹرفیئر نہیں رہتا ہے ماں باپ کا، ہے نا۔ بس ایسے ایک بے جان سی چیز بن کے ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگیوں میں ہم بہت زیادہ ان سب چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہی اولادیں ایسی ہیں جو آج ماں باپ کے کوئی کام نہیں آ رہی، حالانکہ ماں باپ نے کتنی توقعات سے، کتنی امیدوں کے ساتھ ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، اور پھر اب جب بڑے ہوئے، عروج پہ آئے، تو پھر ویسی اولادیں ماں باپ کی کوئی کام نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں نہیں کام آتی، تو پھر آخرت میں ان سے کیا امیدیں رکھی جا سکتی؟ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو کرنا ہے، خود اپنے لیے تیاریاں کرنی ہے، خود ہمیں اپنے لیے اللہ کے جو حضور حاضر ہونا ہے، تو ہمیں خود اپنی ساری کوششیں کرنی ہے، اپنے عمل صالحات کرنے ہیں۔
तो ठीक है, इनका भी हुकूक अदा करना है, औलाद का भी, लेकिन सब कुछ इन्हीं को नहीं समझ लेना है। सब कुछ इन्हीं को समझ के अल्लाह की नेकियों से रुक जाना, कुरान से पढ़ने से रुक जाना और फिर इनकी ज़िम्मेदारी और औलादों की शादियाँ, औलादों की पढ़ाई, औलाद की परवरिश, औलाद का जो है अच्छे से केयर टेकर की वज़ह से अब आप ये नहीं कर सकते कि आप कुरान से, नमाज़ से, अल्लाह के अहकामात से फिर दूर हो गए। तो जब भी कोई इंसान अल्लाह के अहकामात से पीछे हटता है, कुरान से पीछे हटता है, नमाज़ों से पीछे हटता है, अल्लाह के कोई भी अहकामात से पीछे हटता है, तो फिर वो क्या है? इनकार करने वाला है। तो इनकार यानी उसने अल्लाह के हर हुक्म के आगे जिस-जिस हुक्म के आगे इनकार किया, तो वो क्या है? इनकारी है, काफ़िर हो गया वो। ज़रूरी नहीं कि वो खुल्लम-खुल्ला ही इनकार करने वाले हैं, ठीक है? अल्लाह के हर अहकाम के आगे कोई भी अल्लाह का अहकाम आया, हुक्म आया, उसने क्या किया? इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आएँगी जिन्होंने अल्लाह के आगे क्या किया? कुफ़्र किया। तो अल्लाह ताला के मुकाबले में जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनको उनके माल कोई काम नहीं आएँगे, ना उनकी औलाद कोई काम आने वाले हैं। तो ये इनका सिला होने वाला है और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं व उलाइका अस्हाबुन नार और यही लोग दरअसल क्या है? आग के साथी हैं। हुम फीहा खालिदून और वही उसमें हमेशा रहने वाले हैं। जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी इस माल और औलाद के फ़ितने में और अपने अल्लाह को नाराज़ किया, सारी ज़िंदगियाँ अपने बच्चों की परवरिश में, है ना? और उनके बच्चों की मोहब्बत में आकर के इंसान इनकी अच्छी परवरिश और गोल्डन फ्यूचर की वजह से अक्सरियत जो मर्द हज़रात होते हैं, वो गलत काम की तरफ भी मुलव्वस हो जाते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। चोरी, डकैती, है ना? धोखा, फ्रॉड, जालसाज़ी, लोगों का दिल दुखाना, बस कैसे भी करके माल जमा करना ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके या बच्चों की अच्छी शादियाँ रचा सके या लोग कहें कि मेरे बच्चे की हमने कितनी शानदार शादी की है, वाह! है ना? तो फिर इस मिशन की वजह से फिर इंसान क्या करता है गलत कामों की तरफ चला जाता है, सूद तक की ले लेता है, लोन पर जो है इतनी बड़ी इनकम ले लेता है, क्यों? उसको बड़ी सी शादी जो करनी है। अब ऐसे शख्स के लिए जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के आगे कुफ़्र किया, कहाँ से पकाया, कहाँ से माल उसने कमाया, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ठिकाना क्या होने वाला है? जहन्नम है, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ठीक है? तो हमेशा-हमेशा रहने वाले हैं काफ़िर लोग उसी में, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 117। उसकी मिसल जो इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं और उस हवा की मिसल की तरह है जिसमें शदीद सर्दी हो और जो ऐसे लोगों की खेती को पहुँचे जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, तो उसने इसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला इन पर ज़ुल्म नहीं करता, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद ही ज़ुल्म करते हैं। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ फरमाया है कि ऐसे लोगों की जो मिसाल है जिन्होंने कुफ़्र किया, ठीक है? जिन्होंने कुफ़्र किया, तो अब ऐसे लोगों के माल खर्च करने वालों की जो मिसाल बताई जा रही। दरअसल ये दुनिया क्या है? दारुल अमल है और दारुल आखिरत क्या है? अमल की जज़ा है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी बोएगा, वो आलम आखिरत में काटेगा। मगर दुनिया की में जो उसने बोया हुआ जो खेती है ना और उसके भी क्या है चंद शराइत हैं। दुनिया में हम अगर खेती बो रहे हैं अमाल वाली तो उसके चंद शर्तें हैं और वो शर्त है अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना। ठीक है? ईमान। फिर खुलूस नियत यानी इसमें ज़र्रा बराबर भी रियाकारी ना हो। और जो काम किया जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया जाए, किसी भी तरह का इसमें दिखावा ना हो। और फिर इसमें तीसरा क्या है शर्त कि वो जो काम अमल स्वाले हो तो वो क्या हो किताब और सुन्नत से साबित हो यानी वो सदका और खैरात जो कर रहा है वो शरीयत की बताई हुई हिदायत के मुताबिक किया जाए इनमें से अगर कोई एक भी शर्त नहीं पूरी है तो फिर वो क्या है आखिरत में उसको कुछ भी उसकी कमाई का सिला नहीं मिलने वाला है तो आमाल की कबूलियत की 3 शराइत है। पहला ईमान, ठीक है? अमल साले की कबूलियत की 3 शराइत है। पहला है ईमान, दूसरा है इखलास और तीसरा है तरीक़ाए सुन्नत रसूल। अगर इन तीनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर क्या है अमल साले कबूल नहीं होगा, ठीक है? तो अमल साले आप देखिए कि हर वो काम जो नेकियाँ
नेकियों की तरफ करा जाए, नेकियों में दौड़ लगाया जाए। जैसे अब फ़राइज़ के अलावा जो इंसान काम करता है, तो वो क्या है? अमले स्वाले है। अब नमाज़ जैसे पढ़ रहा है इंसान, एक्स्ट्रा की जो नमाज़ें पढ़ रहा है, तो अमल सालेह है, कुरान पढ़ रहा है, तो अमल सालेह है, सदक़ात कर रहा है और खैरात कर रहा है, तो ये क्या सब अमल सालेह है। अब इसमें भी अगर उसने कुछ भी ऐसा किया कि हम जो है करें, ताकि हम इसलिए करें ताकि हमें लोग वाह-वाह कहें और हमारा नाम हो, हमारा जो है, और फिर इसलिए भी अगर उसके कुछ इसके अंदर शक आ गया कि वाक़ई में अगर हम कर तो रहे हैं, पता नहीं हमें इसका सिला मिलेगा, नहीं मिलेगा, आखिरत है, नहीं है, अल्लाह है कि नहीं है, तो फिर ये क्या है? फिर ये जो है फिर कचरे में गया सारा काम। और ये सब क्या है, फिर कबूल नहीं होगा। और फिर तीसरा ये बात है कि अगर उसने जो है वो तरीका इख्तियार किया जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, यानी कि ठीक है, तो फिर ये क्या है? तो अमाल कबूल नहीं होंगे ऐसे लोगों के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कमसली रिहिन फीहा सिर्र असाबत हर्सन हर्स कौमी ज़लमू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, उस हवा की जो मिसाल है, जो मिसाल की तरह जिसमें शदीद सर्दी हो और जो ऐसे लोगों की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो उसने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। दुनिया की जिंदगी में काफिरों के अच्छे मकसद के लिए खर्च की मिसाल ऐसे खेत की तरह है जो हरा भरा और कटाई के लिए तैयार है, लेकिन अचानक उस पे बर्फीली हवा चलती है और खेत को बर्बाद कर देती है। इसी तरह से अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने वालों का जो भी अच्छा मकसद पर किया गया हो, खर्च किया गया हो, बर्बाद होने वाला है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिर के अमाल को खेत से तशबीह दी गई है। जिस तरह, तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, मसल युनफिकूना फी हाज़िहि दुनिया, यानी कि उसकी मिसाल वो है जो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करता है। तो मिसाल इस तरह की जैसे किसी शदीद सर्दी में हो और ऐसे लोगों की खेती को पहुंची जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी कि यहाँ पर जो खेत है ना, उसकी मिसाल दी गई है अमाल से। तो खेत दरअसल किससे तशबीह दी गई है? अमाल से। तो जैसे जैसे जिस तरह से खेत पर है ना, आपने देखा होगा जो हरे भरे खेत होते हैं बिल्कुल लहलहा रहे होते हैं, लेकिन अगर बर्फीला पाला पड़ जाता है या उस पे बर्फ गिर जाती है या डीप फ्रीज कर देने वाली जो है ना आंधी आ जाए या बारिश आ जाए, तो फिर क्या होता है? सारा खेत मर जाता है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, अगर हम लोगों के घरों में ना ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर रखे होते हैं और अब उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला जो उस पर टेम्परेचर लगा है और आपने अगर उसके अंदर हरा-भरा पालक या सब्ज़ी रख दी, तो फिर क्या होता है? वो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा कोल्ड होके फिर वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है ना। जैसे कहते हैं बर्फ बन गई वो सब, और फिर वो पकाने के लायक भी नहीं रहती है। तो अल्लाह तबारक तआला हमारे सामने हर चीज़ का मुशाहिदा करा देते हैं, बस यही है कि इंसान गौर फ़िक्र नहीं करता है ना। तो ऐसे काफ़िरों का भी अमाल है कि उसने जो है ना काम तो किया, खेती भी की, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको नहीं मिलेगा। उसको जज़ा नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि उसके अमाल को अल्लाह तबारक तआला क्या करने वाले हैं? राख बनाकर उड़ा देंगे। बेकार हो गया उसका सब किया कराया। ठीक है? तो काफ़िरों के अमाल उनके काम नहीं आएँगे और वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। क्यों नहीं काम आएँगे? काफ़िरों का किया धरा, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए हैं आखिरत पर, अल्लाह पर, और वो आखिरत की जज़ा सज़ा का शऊर भी नहीं रखते हैं। ईमान के बगैर किसी किस्म के कामों का कोई सिला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका आखिरत पर यकीन ही नहीं था ना। तो चाहे वो उसने ख्वाह दुनिया में कितनी ही बड़े-बड़े काम किए हों, कितनी बड़ी-बड़ी चैरिटी की हो, कितना बड़ा-बड़ा उसने डोनेशन किया हो, कितने बड़े-बड़े सबकी उसने हेल्प किया हो, सब कुछ किया, लेकिन सब क्या है? बर्बाद। लेकिन अमलन क्या है? उसने ईमान नहीं लाया, अमल साले के साथ-साथ उसने ईमान भी लाना ज़रूरी था और फिर इखलास भी चाहिए था और फिर क्या चाहिए था? तरीक़ा सुन्नत रसूल चाहिए था। तो दुनिया में चाहे कितनी भी बड़े-बड़े उसने डोनेशन किया हो, सब कुछ किया हो, चैरिटी की हो, लेकिन जब उसने ईमान नहीं लाया, अमल सालिहात नहीं थे, फिर साथ में तरीक़ा रसूल नहीं था और फिर इखलास नहीं था, तो उनका सिला क्या है? उनको कुछ नहीं मिलेगा आखिरत में, बल्कि उनको जहन्नम में हमेशा-हमेशा रहना पड़ेगा। तो काफ़िरों की दुनियावी जो खर्च का जो सवाब दुनिया में ही उनको उनका मिटा दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि एक जो
हरे-भरे खेत को बर्फीली हवा ख़त्म कर देती है ना, उसी तरह से जो काफ़िर जो काम करता है, अच्छाई करता है, चैरिटी करता है, अच्छे-अच्छे काम करता है, वो सब क्या होता है, मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो काफ़िर जब अल्फ़ाज़ है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर किसी और की बात हो रही है। तो काफ़िर हर वो शख़्स है जिसने अल्लाह की कोई एक आयत पर क्या कोई एक बात पर इनकार कर दिया, ठीक है? तो अल्लाह के हुक्म के आगे क्या करे, समीना व अताना करे, ना कि इनकार करने वाले। जैसे बनी इसराइल ने किया था ना, समीना व अतैना कि सुना हमने अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मानते नहीं हैं, उन्होंने इसी का मुज़ाहरा किया था, तो वो काफ़िर हो गए। आयत देखिए, आयत नंबर 118। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हें किसी तरह बर्बाद करने में कोई कमी नहीं करते और वो पसंद करते हैं कि ऐसी चीजों को जो तुम्हें मुसीबत में डाल दे। उनका बुग़्ज़ उनके मुंहों से जाहिर हो चुका है और जो उनके सीनों में छिपाए हुए हैं ज्यादा बड़ा है। यकीनन हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी है अगर तुम समझो। तो यहाँ दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और सारे ईमान वालों से खिताब है और खास करके हम सब से खिताब है, जो भी ईमान वाला है उन सबको हुक्म दिया गया है, अहकाम है। क्या है? अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू बिताना मिन दूनिकुम ला यालूनकुम, कि तुम ना मोमिनों के सिवा किसी और को दिली दोस्त ना बनाओ। ठीक है? तो दिली दोस्त बनाने से मना कर दिया गया है। तो दरअसल इसके पीछे ख़ास पस-ए-मंज़र था कि मदीना में औस और ख़ज़रज के 2 बड़े कबाइल आबाद थे। ज़माना दराज़ से यहूदियों के साथ उनका दोस्ताना ताल्लुक चला था। अब औस और खजरस के जो लोग थे मुसलमान हो गए थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वहां गए। तो उन यहूदियों के साथ अपनी दोस्ती निभाते रहे वो लोग। मगर यहूदियों का हाल ये था कि जाहिर में तो वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज से मिलते हैं। उम, और उनसे कुछ जो लोग हैं वो भी ये जाहिर करते थे कि मुसलमान वो हो गए, लेकिन उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ भरा था, यानी मुनाफ़िक़त थी। कभी ऐसा भी होता कि मुसलमान उनकी जो दोस्ती पर भरोसा करते हुए उनको अपनी कोई राज की बात भी बता देते। तो इस आयत में मुसलमानों को खबरदार किया गया है कि वो काफिरों को और मुशरिकों को अपना राज ना बताएं। अल्लाह ताला ईमान वालों को काफिरों को और मुनाफिकों की दोस्ती से ताल्लुक से रोकता है। और ये क्योंकि यहाँ पर बता दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनकी बातों में बहक ना जाना, उनके फ़रेब के फंदे में फँस ना जाना, और वरना मौका पाकर ये तुम्हें सख्त नुकसान पहुँचाएँगे और अपनी अंदरूनी दुश्मनी तुमसे निकालेंगे वो, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया कि इनसे दोस्ती ना करना। इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि जाहिलियत की दोस्ती की बिना पर मुसलमानों में से कुछ हज़रात यहूदियों के साथ दोस्ती रखा करते थे। अल्लाह ताला ने उससे आगाह फरमाया है और फितने की बिना पर उनसे ताल्लुकात रखने की ममानत फरमा दी है। और ये आयत नाज़िल फरमाई कि अपने अलावा किसी को साहिब ख़ुसूसियात ना बनाए, यानी अपने अलावा से मुराद यानी मुसलमानों के अलावा किसी और से राज़दार उनसे दोस्ती ना बनाना, ठीक है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा कोई को किसी और को दोस्त यानी दिली दोस्त ना बनाना। तो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को इस बात से मना फरमाया कि वो मुनाफिकों को राज़दार बनाए और उन्हें अपने भेदों से आगाह कर दे और उन्हें वो बातें बताएं जो उन्होंने अपने दुश्मनों से छिपा रखी हुई हो। क्योंकि मुनाफिक की ये कोशिश होती है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखते, यानी वो मुसलमानों की दुश्मनी में हर वक्त हर मुमकिन तरीका इख्तियार करते हैं और जिस कदर में मुमकिन हो वो मकारी फरेब से काम लेते हैं और ऐसे कामों को पसंद करते हैं जो मोमिनों के लिए तकलीफ और मुशक्कत का बायस होता है। तो यहाँ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बितानतन लफ्ज जो लाए हैं, बितानतन दिली दोस्त और राजदार को कहते हैं। ये बा तो नून से है, ठीक है? तो बितानतन कहते हैं इंसान के राजदार दोस्त को, भेदी को।
बताना उस कपड़े को कहते हैं जो इंसान ने कपड़े के नीचे पहना हो, जो इसके बातिन से मिला हुआ हो, जैसे बनियान वगैरह। और चूंकि इंसान का गहरा दोस्त भी इसी के तमाम बातिनी औसाफ और खसाइल पर मुत्तला होता है, इसलिए उसको भी बताना कहा गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि मिन दूनिकुम, कि इससे मुराद क्या है? मुसलमानों के अलावा तमाम फिरके हैं, उनके उनसे तुम दोस्ती कर, जिससे जो है उन सब से तुम्हें क्या करना है? दिली दोस्त बनाना नहीं है तुमको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी कोई शख्स हाकिम होता है ना, तो उसके सुलहकार यानी कि सलाह देने वाले, सलाहकार और मशवरा दो दो तरह के देने वाले होते हैं। तो जब भी कोई हुकूमत करता है तो उसके सलाहकार या मशवराकार 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो उसे नेकी और भलाई का हुक्म देते हैं और उस पर और उसी नेकी की भलाई पर उसको उभारते रहते हैं, और दूसरे वो जो बुराई का हुक्म देते हैं और उसे उसी यानी बुराई पर उसे उभारते रहते हैं, और वो मासूम वो है जिसे अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये सही बुखारी की हदीस 661 है, यानी कि जो आस-पास के जो करीबी के जो ओहदों पे बैठने वाले जो लोग होते हैं, वो दरअसल क्या हों? वो ऐसे लोग हों जो मुसलमान हों, ठीक है? तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ, अपने करीब ना करो, अपने बिल्कुल राज़दार ना बनाओ। दरअसल यहूद औस और खजरज से 2 तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। पहला इस तरह से कि दोस्ती से वो मुसलमानों के अहम राज मालूम कर लेते थे ताकि मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सके। दूसरा ये था कि उनको सारी खबरें मिल जाती और अपना काम भी वो आसान कर लेते, और कोई ऐसा साजिश या प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से मुसलमानों को इंतशार फैलाते। तो यहूद को अल्लाह ताला के रसूल से खास दुश्मनी थी। यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास दुश्मन थे, और आप देखिए कि वो इसी बिना पर ये सब कुछ सरअंजाम देते थे। और सहाबा ने कितना बेहतरीन अमल किया इस आयत पर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में अबू मूसा अशरी ने एक गैर मुस्लिम को अपना सेक्रेटरी रखा। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात पता चली तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बहुत सख्ती से डांटा और उन्हें लिखा कि तुम्हें इनको अपने करीब नहीं करना है, हालांकि अल्लाह ने इन्हें दूर कर रखा है। ठीक है? तो उन्होंने लेटर लिख के क्या कहा कि तुम्हें जो है इनको अपने करीब ना करो, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें दूर कर दिया है। तुम उनको इज़्ज़त ना बख्शो जबकि अल्लाह ने उन्हें ज़लील कर दिया है। तो ऐसा लेटर लिख के उनके पास भेजा। तो आप देखिए कि इससे मुराद क्या है कि यानी जो कुफ़ार हैं, मुनाफ़िकीन हैं, यहूद नसारा, तो इनको अपने आस-पास जो है ना कोई बड़ा ओहदा ना देना है, या ऐसी पोस्ट नहीं देना है कि जिससे मुसलमानों के राज़ उनको पता चले। यानी इस्लामी जहाँ हुकूमत कायम है, तो वहाँ पर इनको ऐसी ऊँची-ऊँची पोस्ट पे इनको ऐसी जगह पे नहीं इनको फ़ायज़ पहुँचाना है। तो दरअसल क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी होते हैं, अमीन होते हैं, मुंशी होते हैं, इस तरीके के जो जहाँ पर मुसलमानों के जो मतलब कि राज़ लीक ना हो जाए, इसलिए इनको ऐसी जगह पे पोस्ट ही नहीं देनी है। और सूरह बकरा में भी आया था ना कि अल्लाह ताला ने काफ़िरों को दिली दोस्त बनाने से मना किया है, और उनको वली, राज़दार नहीं बनाया जा सकता है। उनसे मवालात नहीं होंगे, मामलात और मदरात तो हो सकते हैं उनसे, ठीक है? तो ला यालूनकुम खबाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ला यालूनकुम खबाला। तो इसके माने ये है कमी करना, कोताही करना, और खबाला खबाला के माने क्या होते हैं? खराबी डालना, नुकसान पहुंचाना। मा अनितुम यानी मशक्कत में, तकलीफ में, यानी जिससे तुम तकलीफ में पड़ जाओ। तो दिली दोस्त ना बनाने के हुक्म की वजह यहाँ बताई जा रही है, क्यों नहीं बनाना है इनको दोस्त। वरना अगर तुम इनको दोस्त बनाओगे तो क्या होगा कि तुम परेशानी में, मशक्कत में पड़ जाओगे। दिली दोस्त ना बनाने के हुक्म की वजह की तरफ इशारा है, यानी अगरचे ये लोग अपनी मुनाफिकत की बिना पर तुमसे ऐसी बातें नहीं करना चाहते जिनसे तुम्हें उनकी इस्लाम दुश्मनी का पता चल सके, मगर शदीद दुश्मनी की वजह से उनकी जबानों पर ऐसे अल्फाज आ ही जाते हैं जिनसे तुम अंदाजा कर सकते हो कि ये तुम्हारे खैरख्वाह नहीं है बल्कि बदतरीन दुश्मन है, और तुम्हारे खिलाफ जो जज्बात अपने दिलों में छुपाते हैं वो इसे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं।
ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے اور تمہیں مشکلات، تمہارے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، وہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد ہو سکے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے، وہ تمہارے دین اور دنیا میں شدید نقصان کی تمنا رکھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور آپ کے نبی کی تکذیب اور کتاب اللہ کی تکذیب ظاہر ہو چکی ہے، یعنی کہ انہوں نے جو بغض تھا ان کا یہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور ایک نبی کا انکار دراصل سارے نبیوں کا انکار ہو جاتا ہے نا۔ تو وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے، یعنی جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے اس سے جو ان کی زبانیں کہتی ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی نصیحتوں کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے ہیں جس سے تم اپنے دشمنوں کو پہچان کر اس کی دوستی سے بچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں احکامات ہیں کہ اگر ہم حالانکہ اسلامی شریعت میں نہیں رہتے ہیں، یہاں پہ جو نافذ ہے وہ ایک آ، ایسی ہندوز میں جو ہے وہ نافذ ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے جو ہے نا دلی دوست ان غیر مسلموں کو نہیں بنانا، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو اس کو ہم اپنا دلی جو دوست نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو کسی کو بھی اپنے جو جو اسلام کے ہیں اور جو راز ہوتے ہیں یا گھر کے راز ہوتے ہیں یا فیملی کے راز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات چیت ہے ان سے چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کو جو ہے اپنے گھروں کے راز اور جو ہے نا سب چیز نہیں بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا تمام طرح کے ان سے جو ہے راز چھپانے ہیں، نہ فیملی کے ان کو راز بتانے ہیں، شیئر کرنے ہیں، نہ اپنے راز بتانے ہیں، نہ شیئر کرنے ہیں، نہ ہمارے اسلام کے راز بتانے ہیں، کچھ بھی ان کو کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنی، ان کو کبھی بھی ان کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو منع کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک مسلمان کا کیا ہے، دوست ہے۔ تو آج دیکھیے کہ حالانکہ یہ مسلمان ہے لیکن کیا ہے، اگر مسلمان ڈویژن میں بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو وہ سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی اور پھر جو بھی ریلیجس ہے تو وہ کیا ہے، وہ سب دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کو دشمنوں کی دوستی سے روکا گیا ہے، اور کہ دراصل یہ حکم دیا گیا ہے، پہلا یہ ہے، فرسٹ یہ ہے کہ ان پر یقین مت کرنا، ان پر اعتماد نہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو رازدار نہ بنانا، اور تیسرا یہ ہے کہ ان سے مشورہ نہ لینا، اپنی زندگی کے معاملات ہو، کوئی بھی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، فیملی میٹر ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی ان سے مشورہ نہ لینا، ورنہ کیا ہے، ان کی جو قدورت ہے نا وہ اپنی اسی قدرت سے ہی یہ بغض اور عناد یعنی دشمنی سے ہی اپنا ظاہری جو ہے وہ اپنا زبان سے تو وہ بھلے بنیں گے، ایسا مشورہ دیں گے، لیکن اندر سے کیا ان کی دشمنیاں ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلموں کو مسلم ممالک کے جو آفس ہے نا اس میں ایسی ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے جن کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی رازدار یعنی کہ راز حاصل کر لے اور دشمنوں کو ان کی اطلاع دے دے۔ تو یہ اسلامی شریعت کے لیے خاص نافذ ہے، اور ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اپنے گھر کے تمام طرح کے راز اور مشورے اور ان پر ایسا یقین اور اعتماد نہیں کرنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 119۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ تم ساری کتابیں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں ہی تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی مسلمان ان کے لیے اسلام چاہتے ہیں،
ये चाहते हैं वो मुसलमान हो जाएँ और वो बेहतर चीज़ चाहते हैं। और वो सब तुम्हारे लिए यानी मुसलमानों के लिए क्या चाहते हैं? कुफ़्र चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि मुसलमान भी क्या हो जाए? काफ़िर हो जाए और शिर्क करने लगे। और वो क्या है? वो सबसे बड़ी हलाकत है। यानी जब मुनाफ़िक तुम्हारे सामने ईमान का इज़हार करते हैं, तो तुम उन्हें दोस्त समझ लेते हो और हालाँकि वो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर तुम्हें दोस्त नहीं रखते हैं, ठीक है? तुम तो उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन उनके जिनके दिलों में ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं, वो तुमको क्या है? दोस्त नहीं समझते, वो तुमको दुश्मन समझते हैं। वतुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, हालाँकि तुम तो सारी किताबों पर ईमान रखते हो, यानी तुम सारी आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो, तौरात, इंजील, ज़बूर, और लेकिन ये जो है, ये तुम्हारी किताब पे तो ईमान नहीं रखते हैं ना। तो वो तुम तो सारी किताबों पर ईमान लाते हो, यानी उनको अल्लाह ताला की जानिब से तस्लीम करते हो। हाँ, तुम ये यकीन करते हो कि हाँ, वाक़ई में उनके यहाँ जो किताबें हैं अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाई हैं। लेकिन वो तो नहीं मानते ना। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। जब वो मोमिनों से मिलते हैं तो अपने खून और मालों के डर से कहते हैं कि हम ईमान ले आए। यानी वो डर जाते हैं और डर के मारे उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं। वइज़ा खलौ अद्दू अलैकुम अनामिला मिनल गैज़, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। यानी जो कुछ वो अपने दिलों में गुस्सा और कराहत और नापसंदीदगी पाते हैं ना, उसकी वजह से तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। ठीक है, ये गुस्से का एक तरीका है कि इतना गुस्सा कि इंसान क्या करता है, अपनी उँगलियाँ अपने हाथों से अपने मुँह से चबा ले। तो गुस्से की इंतहा बताई जा रही है, इतना गुस्सा है इनको मुसलमानों से। आप देखिए कि अगर आप नज़र उठा के देखेंगे ना, तो चारों तरफ मुसलमानों के लोग दुश्मन हैं। कोई भी दोस्त नहीं है आज। चाहे आप यहूद ले लें, चाहे नसारा ले लें, चाहे आप बौद्ध ले लें, चाहे आप कोई भी ले लें, चाहे आप हिंदुओं को ले लें, हर एक आज मुसलमानों का दुश्मन है। तो दुश्मनी दरअसल अल्लाह तबारक तआला ने हमें इन सब चीज़ों से आगाह कर रहे हैं कि वजह क्या है। इनकी लड़ाई हमसे आज से नहीं है, तब से है जब से शिर्क और तौहीद था, ठीक है? तमाम अंबिया इस बात की पैगाम लाए कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है। जिसने इस पर समीना व अताना कहा और वो मुसलमान हो गया, तो फिर क्या उसी वक़्त से ये हक और बातिल का मुआरका, ये लड़ाई शुरू हो गई। तो दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने तौहीद वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान तौहीद पर रहें, मुसलमान रहें, और वो हसद करते हैं मुसलमानों से। तो आज इतनी बड़ी तादाद, दुनिया की कितनी बड़ी तादाद है, सब मुसलमानों के क्या है, दुश्मन है। वजह यही है क्योंकि वो शिर्क और हक नाहक को पसंद करते हैं। वो शिर्क करते हैं और नाहक को पसंद करते हैं, और उनको तौहीद और हक पसंद नहीं है। कुल मौ कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, तो आप कह दीजिए अपने गुस्से में ही तो मर जाओ। अहले किताब के गुस्से से उँगलियाँ चबाने पर उन्हें ये बात कही गई ताकि उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह ताला दिल के हालात को जानता है, और ये कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो जिसको चाहता है नबुव्वत के लिए चुन लेता है, और उसके फ़ैसले पर किसी का तर्ज़ अमल असरअंदाज़ नहीं हो सकता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बिलाशुबह अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। के अल्फाज से इंसान को मोहतात होता है और इसे यूं लगता है जैसे चोरी पकड़ी गई ना, कि अल्लाह ताला सीनों के भेद जानने वाला है। जब ये अल्फाज हमारे सामने आते हैं तो क्या एक अटपटाहट सी होती है ना, एक ऐसा लगता है कि वाकई में क्या है कि वाकई में अल्लाह तबारक ताला हमारी हर सीनों की बात जानता है, सीनों के भेद जानता है, सब कुछ जानता है। तो इंसान जो है अटपटा जाता है कि अल्लाह वो है कि हमारे सीनों की बात जानता है ना? तो इसीलिए आमाल का जो कबूलियत है, तो इंसान के लिए उसको चाहिए कि हर नेक काम करे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता हमारे कोई भी नेक अमल में मिलावट हुई, हम दिखावे के लिए कर रहे हैं या कोई भी वजह है, तो अल्लाह जानने वाला है, क्योंकि क्या है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानता है। तो ये एहसास इसे एक लम्हे के लिए भी ना ईमान की रोशनी में ज़रूर ले आता है। अगर इंसान के अंदर थोड़ी-सी भी हक़ परस्ती होती है ना, तो इंसान के सीने के बुग़्ज़ के बारे में शर्मिंदा हो जाता है और उसे निजात पाने के लिए सोचता भी ज़रूर है। ठीक है?
तो ये एक ऐसी आयत है कि इस पर क्या है, हर इंसान क्या होता है, झंझोड़ जाता है। ये आयत हर इंसान को झकझोर देती है, क्योंकि अल्लाह तो वो है जो हमारे सीनों के भेदों को जानने वाला है। तो फिर कैसा ये रियाकारी, कैसा ये दिखलावा, कैसा ये जो है ना, किस तरह से इंसान दिखावा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला तो सब कुछ जानने वाला है। आयत देखिए, आयत नंबर 120। और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती तो वो खुश होते हैं। और तुम अगर सब्र करो और अल्लाह अल्लाह ताला से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यकीनन जो वो अमल करते हैं अल्लाह उसका इहाता करने वाला है। इन तमसस्कुम हसनतुम तसूहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो उन्हें बुरी लगती है। यानी जब मुसलमानों को कोई भलाई, हसना, फतह और नुसरत है ना, ये सब पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है। जब फतह होती है, कामयाबी होती है, मुसलमानों की ताईद होती है, और फतह और नुसरत मुसलमानों के कदम चूमती है, तो मुनाफिकों के दिलों पर सांप लौट जाते हैं। मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का बढ़ना, फलना, फूलना उन्हें एक आँख नहीं भाता है। व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो इस पर वो खुश हो जाते हैं। और जब वो अहले इस्लाम को फ़िरक़ों में बँटा हुआ देखते हैं, तो इससे भी वो खुश होते हैं ना। तो आज अफ़सोस होता है कि मुसलमान तो इतने ज़्यादा हैं और कितने फ़िरक़ों में आज मुसलमान बढ़ गया है ना। इंतशार फैला हुआ मुसलमानों में। तो इन गैर मुस्लिम को कितनी खुशी होती है, चलो इन्हीं के अंदर फूट पड़ी हुई है ना। तो फिर क्या है कि इस वजह से भी ये क्या होते हैं, खुश होते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो अल्लाह ताला की मदद और तायद के हुसूल का जरिया बताया गया है कि वो क्या है, सब्र और तकवा है। मुसलमान को पस्ती और ज़वाल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दीन पर साबित कदम रहे। यही सब्र का तकाज़ा है। और अल्लाह ताला से डरते रहें, क्योंकि यही खौफ इंसान को दुनिया की हर कुव्वत के खौफ से आज़ाद कर देता है। ठीक है? जो अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता, वो हर एक से डर-डर के जीता है। इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, यकीनन जो वो अमल करते हैं अल्लाह उसका इहाता करने वाला है। अल्लाह ताला दोनों फरीकों के अमाल को जानता है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है, कौन क्या जाहिर कर रहा है, कौन अल्लाह की राह में अपनी जान घुलाए दे रहा है, कौन दीन से निकल के बाहर चला गया है। अल्लाह ताला सबके अमाल को घेरे हुए है। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।